So since last few lectures we are looking to pharmaceutical analysis sessions back to back, and we are trying to cover all the titrations. Okay, so just we'll have a flashback of what we have seen till now. Okay, so in pharmaceutical analysis, basically we were looking for volumetric analysis. So we have seen what is volumetric analysis, classification of volumetric methods of analysis. So in that, aqueous acid based titration, non-aqueous titration, precipitation titration, complexometric titration, and redox titration, in which we have completed aqueous acid base, non-aqueous titration, and complexometric titration. Today we'll be seeing precipitation titration, redox titration, and some other methods of analysis. So in detail classification we had studied for this volumetric methods of analysis, methods of expressing concentration, some basic fundamentals we had studied here. Then primary and secondary standards, what they are, we have seen in detail. Okay, then some definitions and terms which are required when we study titrations. Okay, so what is a volumetric or titrometric analysis, standard solution, titrate, titrant, tit titrate or titrate, and titrant, equivalence point, indicator, titration error, true value, standard value, observed value. So then we went for the acid based titration, in which we saw the basic concept of acid based titration and some theories proposed by various scientists, like what are acids, what are base. Like the first theory we saw, that was the Arrhenius theory, then the Bronsted-Lowry theory. Next is Lewis theory. So Lewis theory is what is mostly accepted. Okay, and it tells that taking and giving electrons is involved. Okay, means if any of this gives electron, that is an acid, and the one who accepts the electron is a base. Next we saw about the solvents in acid base aqueous titration, polar solvents, protic, aprotic, then some definitions. Okay, some examples of acid and bases, and like as per their category, strong acid, weak bases, strong bases, and weak bases. Uske baad we saw common ion effect. Okay, it is very important while studying the acid based titrations. Then what are indicators, acid based titration में जो involved होते हैं indicators that we saw. Okay, then is selection of indicator as per your titration. Like, is it your strong acid strong base titration, then which indicator you should choose. If it is strong acid, weak base, or weak acid strong base, and weak acid weak base. Then mixed indicators we studied. Theories of indicators, there are two theories of indicators, Oswald's theory and Quinonoid theory. So we have covered these both the theories as well. The recordings for the sessions are available on the app. Okay, so you can go and watch the recordings. Then we saw the titration curves, and then specifically the neutralization curves or titration curves in acid based titration. They are known as neutralization curves. Okay, so how a titration curve is plotted and what does it depict, we studied. Then we saw four different kind of titrations, titration of strong acid with a strong base, और उसका titration curve देखा था. उसके back का जो fundamental है कि उसमें ये curve जो है वो क्यों आ रहा है ऐसे, वो पूरा study किया था. फिर titration of weak acid and a strong base we had studied. Similarly, titration of strong acid with a weak base and titration of weak base with a weak acid. So these four different kind of titrations we had covered, and along with this we saw what kind of graph is plotted here, and we summarized all this data. Next we saw non-aqueous titrations. Non-aqueous titrations is where water is avoided as a solvent and other solvents are specifically used. Okay, so this is the basic concept behind the non-aqueous titration and why water is avoided. So these are the few points need of non-aqueous titration are mentioned here. Then if we avoid water in non-aqueous titration as a solvent, then which kind of solvents we should use in non-aqueous titrations, like protogenic, protophilic, protic, and amphiprotic solvents are involved, and what are these, and their examples are mentioned, and this has been already discussed. Then this is also given in brief. Okay, then titrants used in non-aqueous titration, acid titrants and basic titrants are mentioned.
Then we saw the complexometric titration, one of the most interesting titrations that every student likes. So complexometric titration is where a complex is formed, and when a complex is formed, with the help of an indicator, it shows change in the color, and we determine the concentration of unknown ions. Specifically, complexometric titration are useful for determination of, I can say, मेटल आयंस. ओके, सो मेटल आयंस की क्वांटिटी अननोन जो है मेटल आयन का सॉल्यूशन, उसमें कितने मेटल आयंस हैं वो डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज होते हैं. So the most useful complexing agent is EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid. And how does it complex and how does an indicator works? It was already discussed. So EDTA is discussed, complexing agent. Then DTPA, diethylene triamine pentastic acid, is also an complexing agent used in complexometric titration. EGTA is used. Then masking and demasking agents involved in complexometric titration we had studied. So what are masking agents, why are they useful? Then demasking agents and why they are useful. Okay. Then there are different ways by which you can achieve the complexometric titration, like direct titration, back titration, replacement titration, and indirect titration. And all these four were discussed in brief. Indicators involved in complexometric titration were also covered. So this is the chart which will help you study the indicators which are involved in complexometric titration. Then instrumental methods of endpoint detection in this complexometric titration were studied. Now we would be seeing, okay, this some part we'll be discussing. Last lecture we had just saw that instrumental methods for endpoint detection. So इसमें क्या है, we'll see, and then we'll start with the precipitation titration. So spectrophotometric detection, ampherometric titration, potentiometric titration, and high frequency titrator are, these are the few instrumental methods to determine endpoint. Like we use indicators to determine endpoint in the, मतलब हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं endpoint डिटरमाइन करने के लिए अपने टाइट्रेशन वाले रिएक्शन में. तो अगर इफ वी डोंट यूज एन इंडिकेटर वी कैन यूज सम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स. तो वो यहाँ पे कुछ लिस्टेड है. तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक में क्या है कि एब्सॉर्प्शन चेंज होता है उस सॉल्यूशन का, उसके बेसिस पे जो लाइट पास होगी उसमें से वो बताएगा हमें कि इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, एंड उससे हम वी कैन डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ दैट रिएक्शन. एम्फेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या है, द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द हाफ वेव पोटेंशियल ऑफ आयन इज टू रेंडर इट मोर निगेटिव. मतलब क्या है, इसमें एम्फेरोमेट्रिक में भी लाइक पॉजिटिविटी या निगेटिविटी उस रिएक्शन की चेक की जाती है. पोटेंशियोमेट्रिक में भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EDTA के हिसाब से, मतलब EDTA जब है तब वो क्या है नॉर्मल, और फिर जब रिएक्शन प्रोसीड होती है. तो मतलब ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इंस्ट्रूमेंटली एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. नेक्स्ट इज हाई फ्रिक्वेंसी टाइट्रेटर. ये एक टाइट्रेटर जैसा मशीन ही आता है, उसमें यू कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, और उसके डिस्प्ले में यू कैन डायरेक्टली सी द एंड पॉइंट. ओके, so this is what was left for complexometric titration. Today we'll be seeing precipitation titration first. So what is a precipitation titration? First of all, precipitation is the formation of a solid in a solution, and solid form is called the precipitate. ठीक है, precipitation क्या है कि solid formation, एक solution में solid का form होना, उसको हम बोलते हैं precipitate, और इस process को बोलते हैं precipitation. Precipitation reaction जो होती है ना, when water solutions of two different ionic compounds are mixed in and an insoluble solid separates out of solution. मतलब क्या कि दो solution को mix करने के बाद एक insoluble mixture या insoluble solid separate out होता है, उसको हम precipitation reaction बोलते हैं. आपने लैब में की भी होगी precipitation reaction. तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये रिएक्शन दिया गया है जिसमें AgCl is formed as a precipitate. Okay, silver chloride. और ये जो नीचे एरो दिया गया है that is for precipitate. It depicts कि it has been precipitated as a solid. Okay, this is a liquid. This is a liquid transparent solution. This is a liquid transparent solution. And while mixing this both, we get a precipitate and KNO3. Okay, so this is basic precipitation reaction. The precipitation is itself ionic. The cation comes from one solution and anion from the another. सो कटायन और अनायन दोनों मिलके प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. एक सॉल्यूशन से कटायन आता है, एक सॉल्यूशन से अनायन. प्रेसिपिटेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट्स फोर्सेस द रिएक्शन टू कंप्लीशन. मतलब क्या कि प्रेसिपिटेशन आयोनिक कंपाउंड्स का
जब होता है तो वो रिएक्शन एंड हो जाती है, मतलब जब प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. So the requirement for a reaction to be useful in टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में यूज करने वाले हैं उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर उसमें हो रही है तो व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस दैट शुड बी फॉलोड. तो फर्स्ट है प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा उस टाइट्रेशन में वो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होना चाहिए, वो सोल्यूबल नहीं होना चाहिए. अगर वो इनसोल्यूबल होगा तो ही वो हमें दिखेगा, ओके, सॉलिड फॉर्म होगा तब. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन शुड बी रैपिड एंड क्वांटिटेटिव, रिएक्शन वो रैपिड होनी चाहिए और क्वांटिटेटिवली वी कैन डिटरमाइन, ओके. नेक्स्ट इज द टाइट्रेशन रिजल्ट शुड नॉट बी हैम्पर्ड बाय एडसॉर्प्शन को प्रेसिपिटेशन इफेक्ट्स, मतलब वहां पे एडसॉर्प्शन या को प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए उस रिएक्शन में जब हम टाइट्रेशन करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बेसिस पे. एंड द फोर्थ इज इट शुड बी पॉसिबल टू डिटेक्ट द इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है या एंड पॉइंट है वो डिटरमाइन करना उस रिएक्शन में इजी हो. ऐसी ही रिएक्शन हम यूज करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जब हमें कोई अननोन कंपाउंड फाइंड करना होगा. So this is how a precipitation reaction occurs. NaCl with AgNO3 is reacted. AgCl is formed as a precipitate and NaNO3 as a byproduct. So AgNO3 ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है. यहाँ पे NaCl का पहले सॉल्यूशन था, इसमें AgNO3 डाला गया एंड AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, ओके. So this is an example of your precipitation reaction. Now solubility products. मतलब क्या मैं बताता हूँ. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स मतलब कि वाई, मतलब इसमें जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. आप तीनों पॉइंट देखिए, देन यू विल गेट द क्लियर पॉइंट. द सॉल्वेंट शुड कंपेयर विद क्रिस्टल फोर्सेस एंड ओवरकम देम, which often means that the solvent environment must be similar to that provided by the crystal structures. This is the basis for simple rule like dissolved likes means solute-solute attraction overcome the solute-solvent attraction. अब प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो रहा है हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे देख रहे हैं, ओके. ये 3 पॉइंट हमें बताएंगे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन में कैसे फॉर्म होता है. अब देखो, हम एक क्लियर सॉल्यूशन और एक दूसरा क्लियर सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स करें, और वो क्लियर सॉल्यूशन कैसे बना है, क्योंकि उसमें कुछ तो सॉल्यूशन है और कुछ तो सॉल्वेंट है और वो एक दूसरे में फुल्ली मिसिबल है. फॉर एग्जांपल NaCl और वाटर लिया, तो मैंने NaCl पानी में डाला तो फुल्ली सोल्यूबल हो जाता है उसमें, ठीक है. एंड वो क्या होता है, तो सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन हो जाता है उनमें और वो फुल्ली सोल्यूबल हो जाता है. अब दूसरा AgNO3 का सॉल्यूशन है, उसमें भी सेम है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का फुल्ली अट्रैक्शन सॉल्यूशन बन गया है. अब मैं जब ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स करूंगा तब क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन बढ़ेगा और सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ओके, ओवरकम होगा, ओके. सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन विल ओवरकम द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन and thus a precipitate would be formed in that solution. मतलब NaCl और AgNO3 का सॉल्यूशन जब मैं मिक्स करूंगा तब Ag और Cl आयंस एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने सॉल्वेंट को छोड़ के, ओके. सो इसलिए ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. During precipitation reaction, however, the opposite condition is appraised for where the intermolecular forces between molecules of product are high and solute-solute forces replace the solute-solvent forces. वही है कि solute-solute forces replace करेंगे solute-solvent forces को due to intermolecular forces between the molecules of that solution. So consider an aqueous solution of a slightly soluble salt be in equilibrium with excess of solid at constant temperature. यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि एक कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक सॉल्ट है और उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं. जब वो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में तो अपने आयोनिक फॉर्म में होगा, Ba इज इन सॉलिड फॉर्म और उसका सॉल्यूशन Ba+ एंड A- फॉर्म में होगा, ठीक है. अब इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल रिप्रेजेंट बाय Ksp, ओके, यहाँ पे रिएक्शन में दिया गया है. सो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Ksp रखेंगे. अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या है कि ये फुल्ली सॉल्यूशन फॉर्म में, इन केस अगर Ba+ या A- या इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई भी आयन बढ़ जाता है उस सॉल्यूशन में, तब वो क्या करेगा, Ksp से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ये इक्वल टू से ये आयंस की अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है इसकी या इसकी, तो ये इट वुड बी ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. तो ये थोड़ा काइनेटिक वाला पार्ट है. बस इतना समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा अगर आयोनिक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है.
नाउ इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी, इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब क्या कि प्रेसिपिटेट की सोल्यूबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट कर सकता है व्हेन वी आर डूइंग अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एसिड। तो जैसे जैसे एसिडिक पीएच बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है कि जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी जैसे वैसे वैसे वो प्रेसिपिटेट ज्यादा स्टेबल होगा या वो प्रेसिपिटेट अच्छी तरीके से फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या है कि कुछ प्रेसिपिटेट्स टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं, कुछ प्रेसिपिटेट नहीं। जब हम इथर्स यूज करते हैं तो तब इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर स्मॉल होता है व्हेन वी यूज इथर्स। एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन encountered in qualitative analysis increases with rise in temperature। मतलब क्या, सोल्यूबिलिटी जो है प्रेसिपिटेशन की वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, ओके। और हमें ज्यादा सोल्यूबल नहीं चाहिए प्रेसिपिटेट, इनसोल्यूबल चाहिए। तो जितना टेम्परेचर कम उतना इनसोल्यूबल द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ डिफरेंट सॉल्वेंट्स अपना अपना रोल दिखाएंगे। अब क्या है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज मिथिल, इथिलीन एंड प्रोपिल अल्कोहल। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कम कर देते हैं, ठीक है, और हमें वो नहीं करनी है, बट यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है। और नीचे और एक एग्जांपल दिया है, एडिशन ऑफ 20% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शोज द सोल्यूबिलिटी ऑफ लीड सल्फेट प्रैक्टिकली निग्लिजिबल, थस परमिटिंग क्वांटिटेटिव सेपरेशन। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं प्रेसिपिटेट पे, एसिड का, टेम्परेचर का और सॉल्वेंट का। नाउ हियर वुड बी सीइंग अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन मीन्स जिस टाइट्रेशन में we use AgNO3 silver nitrate as a precipitating agent, those titration we call it as argentometric titration. Okay, so silver ion is extremely useful in precipitation reaction including halides and pseudohalides. Okay, halides like chlorine, bromine, iodine, and pseudohalides like disulfide, hydrogen sulfide, cyanide, thiocyanide. तो इनका precipitation करने में AgNO3 is mostly used. Okay, और इन रिएक्शंस को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोल सकते हैं, विच कम्स अंडर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन आर द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज स्टोचियोमेट्रिक। स्टोचियोमेट्रिक मतलब वो एक फिजिबल अमाउंट का बता सकता है कि इतने अमाउंट का ये बना है प्रेसिपिटेट, इसमें इतने आयंस हैं, ओके। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम शुड बी अटेन रैपिडली, उसका इक्विलिब्रियम रैपिड अटेन होना चाहिए। द प्रेसिपिटेट मस्ट बी ऑफ लो सोल्यूबिलिटी इन द सॉल्यूशन। ऑब्वियस चीज है, प्रेसिपिटेट की सोल्यूबिलिटी नहीं चाहिए हमें, वो इनसोल्यूबल होगा तो ही वो दिखेगा। मेथड टू डिटेक्ट द स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन मस्ट बी अवेलेबल। जिस पॉइंट पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो मेथड इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। एंड अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव शोन, मतलब एक प्लॉट दिया गया है NaCl और AgNO3 का यहाँ पे टाइट्रेशन है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, तो अब देखिए ये देखिए सिग्मोइडल कर्व्स जो हैं, ये वाला ग्राफ देखिए, ठीक है। पहले क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है अपने पास, ओके, NaCl। इसमें हम AgNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे और AgCl इज अ प्रेसिपिटेट दैट वुड बी फॉर्म, ओके। सो जब NaCl का सिर्फ सॉल्यूशन है, उसमें Cl माइनस आयंस हैं वो कम है, और Ag प्लस आयंस तो उसमें अभी तक डाले नहीं है। जैसे जैसे हम Ag आयंस डालेंगे वैसे वैसे यहाँ पे इसका Cl माइनस सेपरेशन होगा, ओके, NaCl से, और वो Ag के साथ कंबाइन होना चालू करेगा, एंड दिस वुड बी द प्रेसिपिटेशन पॉइंट, दिस वन, ओके। और उसके बाद जैसे जैसे हम Ag डालते जाएंगे वैसे वैसे Ag अलग से आयंस बचेंगे और अलग से Cl माइनस आयंस, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, ये अलग से नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है कि जब Ag आयंस हम बढ़ाते जाते हैं तो Cl माइनस बढ़ते जाते हैं, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ अटैच होके AgCl ऐसा प्रेसिपिटेट बना दें। तो व्हाट इज द बेसिक कंक्लूजन इसमें से कि Cl Na के साथ बाइंडेड होता है एक सॉल्वेंट में, और Ag का जब, मतलब हम सिल्वर का जब सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या करता है, Cl को अपने पास खींचता है और सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन बढ़ाता है और सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कम करता है, इसलिए AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। So the plots of titration curves are normally sigmoidal curves, okay, and the titration curve is normally broken down in 3 regions, okay। तो ये titration curve को 3 region में
हम देख सकते हैं फर्स्ट इज द प्री इक्विवेलेंस रीजन, मतलब ये वाला रीजन वी कैन से, देन इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, ओके, एंड इज द पोस्ट इक्विवेलेंस रीजन, मतलब ये वाला, ये प्री इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस और पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ऐसे 3 रीजन्स में ये प्लॉट होता है सिग्मोइडल प्लॉट. नाउ टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग अमोनिया एंड पोटेशियम थायोसाइनेट. इन टाइट्रेशंस को बोलते हैं थायोसाइनेटोमेट्री. इन टाइट्रेशंस में क्या होता है ना कि थायोसाइनेट टाइट्रेंट होता है, इसलिए इन टाइट्रेशंस को बोलते हैं थायोसाइनेटोमेट्री, जिसमें अमोनिया और पोटेशियम थायोसाइनेट इन्वॉल्व होते हैं. तो इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, ठीक है. थायोसाइनोमेट्री क्या है, तो इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन SCN माइनस इज द टाइट्रेंट, ओके. SCN दैट इज थायोसाइनेट टाइट्रेंट है इन टाइट्रेशंस में, ओके. अमोनिया और पोटेशियम थायोसाइनेट भी हो सकता है, बोथ आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ओके. टाइट्रेंट जो है अमोनिया पोटेशियम थायोसाइनेट, बोथ ऑफ दिस आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड होने की वजह से इनको पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से, दैट इज AgNO3. तो इन दोनों को स्टैंडर्डाइज करने की यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई है. फिर इन टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर है दैट इज आयन 3 सॉल्ट्स, ओके, वो कैसे एक्ट होती हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है. मीडियम ऑफ टाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड होता है. एनालाइट डिटर्मिनेशन, मतलब इसमें क्या क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस टाइट्रेशन की हेल्प से, कोलॉइडर सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट वी कैन डिटरमाइन with this thiosainatometry, and advantage is it happens in a very acidic solution, okay, this reaction thiosainatometry. Next is mercurometry. Mercurometry में क्या है, the precipitation reaction with Hg2 plus is the titrant, okay. Titrant is Hg2NO3 twice secondary standard, so it should be standardized by NaCl. मतलब secondary standards हैं, उनको पहले हम प्राइमरी, हमने जब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स देखे थे तब हमने ये चीज डिस्कस की थी. अगर कोई टाइट्रेंट सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो फर्स्ट उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड से हम स्टैंडर्डाइज करेंगे एंड देन विल बी यूजिंग इट इनटू द टाइट्रेशन. इसमें इंडिकेटर्स हैं सोल्यूशन ऑफ आयन 3 थायोसाइनेट एंड 1 to 2% स्पिरिट डायफिनिल कार्बेजोन, ओके. उसके बाद मीडियम वेरी एसिडिक मीडियम में होता है. एडवांटेजेस इट फॉर्म्स इन वेरी एसिडिक मीडियम, टाइट्रेशन चीप है, और डिसएडवांटेजेस मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक. तो बस जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है इस मर्क्यूरोमेट्री का, और यहाँ पे क्या किस में है, ब्यूरेट में क्या होगा, नीचे क्या होगा, वो डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट आर एंड पॉइंट डिटेक्शन मेथड्स इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. तो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के अपने अपने मेथड्स हैं, उनके नाम से वो मेथड का नाम है. फर्स्ट इज Gay-Lussac's मेथड, ओके. So what is the basic fundamental he involved while determining the end point in the precipitation titration? The fact that occurrence of turbidity accompanies precipitation reaction is made use in this method. मतलब क्या कि precipitation होने से पहले turbidity होती है solution में, and turbidity होते 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 अचानक से precipitate form होता है. So that will help us to find out the end point. और एक बार प्रेसिपिटेशन हो गया उसके बाद कोई भी प्रकार की उस रिएक्शन में टर्बिडिटी नहीं होती. दिस फंडामेंटल वाज इन्वॉल्व्ड इन Gay-Lussac's मेथड टू फाइंड द एंड पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. मतलब क्या, टर्बिडिटी अगर आ रही है सॉल्यूशन में, नाउ इट वुड बी heading towards the end point and it would form a precipitation, and after complete precipitation formation there would be no turbidity. This is mentioned in the Gay-Lussac's method. The next is Moore's method, okay. So what the Moore has explained, the falls under the category of determining the end point by formation of colored precipitate and is used for determination of chlorides and bromides. इसमें क्या है कि color precipitate form होता है and chlorides and bromides in neutral solution in titration में determine कर सकते हैं. Next is Vollard method. Vollard method में क्या है, in this method formation of a solute color compound at the end point, मतलब colored solid precipitate form होता है end point. Silver ion is titrated with thiocyanate in an acid solution using ferric ion as an indicator. ये एक example दिया गया है Vollard method. So these are the endpoint detection methods. Next is Fajan's method. So K. Fajan, through his studies on nature of adsorption, introduced a useful type of indicator for precipitation titration. Such indicators are adsorbed on the surface of precipitation at the equivalence point. मतलब क्या, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना तो उस प्रेसिपिटेट के सरफेस पे ये इंडिकेटर जाके एड्सॉर्ब हो जाता है एंड देन इट शोज अ कलर चेंज
This is involved in the Fajans endpoint detection method. इंडिकेटर्स एसिड डाइज हो सकते हैं, फ्लोरेसिन, इयोसिन, बेसिक डाइज, रोडामाइन, टाइट्रेंड इसमें AgNO3 होता है, मीडियम का pH दिया गया है, इंडिकेटर्स के और भी नाम दिए गए हैं। तो ये दिस इज द फजांस मीटर। इसमें क्या है कि प्रेसिपिटेट के ऊपर जब रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट के सरफेस पे ये इंडिकेटर जाके एड्सॉर्ब होगा एंड इट विल शो अ कलर चेंज एंड दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। This is in Fajans method. Now we completed the precipitation titration. अब हम देखेंगे redox titration, that is oxidation reduction titration, या उसको हम redox titration भी बोलते हैं because oxidation reduction reaction को ही हम redox reaction बोलते हैं. So oxidation reduction titration, what is the concept of oxidation and reduction? So what is a redox titration? First we'll be seeing a titration which deals with a reaction involving oxidation and reduction of certain chemical species is called a redox titration. मतलब एक titration में जिसमें oxidation और reduction reaction हो रही है उसको हम बोलेंगे redox titration. नेक्स्ट इज टाइट्रेशन, फिर से मैंने यहाँ पे दिया है टाइट्रेशन क्या है, द एक्ट ऑफ एडिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द टेस्ट सॉल्यूशन टिल द रिएक्शन इज कंप्लीट इज टर्म्ड एज टाइट्रेशन. Standard solution is one whose concentration is precisely known and a test solution whose concentration is to be estimated. Okay, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है और रिडॉक्स टाइट्रेशन की डेफिनेशन दी गई. अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन की पुरानी जो डेफिनेशन थी वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन. किसी सब्सटेंस को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वो हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये ओल्ड डेफिनेशन थी. अब करंट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो इट इज एन ऑक्सीडेशन. पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी. मतलब अब सोडियम का यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो सोडियम प्लस साइन हो गई एंड इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशिएंट बाय वन इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया. ओके, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक प्लस चार्ज आ गया. रिडक्शन का भी वैसा ही है. ओल्ड डेफिनेशन था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड मतलब रिडक्शन. बट करंट जो है, ओके, करंट डेफिनेशन वो क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ reduction. GER, gain of electron is reduction and LEO is loss of electron is oxidation. Now Cl plus electron, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया and Cl माइनस बन गया. तो if you are gaining an electron you will get a negative charge. Negative charge represents electron richness. One negative charge means rich by one electron. Okay, so this is the basic definition of oxidation and reduction. Redox reactions. Oxidation and reduction go hand in hand. In a reaction, if there is an atom undergoing oxidation, there is probably another atom undergoing reduction. मतलब क्या? अगर एक रिएक्शन में कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा कंपाउंड रिड्यूस भी होगा एंड दिस बोथ रिएक्शन गो हैंड इन हैंड और उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. When there is an atom that denotes electron, there is always an atom that accepts the electron. Electron transfer happens from one atom to the another. So the one who gives the electron gets oxidized and the one who accepts the electron gets reduced. Theory of redox titration. So redox titration usually make use of highly sensitive electrolytic cell that essentially consists of two different typical types of electrodes, indicator electrode and reference electrode. तो redox reaction में क्या है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं और सेंसिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व होता है. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है इट इज मेड अप ऑफ नोबल मेटल. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ नोबल मेटल विल सिंपली एक्ट एज अ vitally important center of electron transfer from the bulk of the solution to the prevailing external circuit. Generally this indicator electrode is made up of platinum. Okay, next is reference electrode. उसमें standard hydrogen electrode and standard calomel electrode होते हैं reference electrode में. तो electrode आपने study किए होंगे एकदम डिटेल में. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रिएक्शन का. टाइट्रेशन ऑफ Fe2 plus ion and Ce4 plus ion in 1 molar HNO3. तो यहाँ पे कुछ किस इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होगी वो है. वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट. इतना ध्यान में रखिए, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो नोबल मेटल
से बनता है स्पेसिफिकली प्लैटिनियम, एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड. Next is redox indicators. A redox indicator should be such that it produces a sudden change in the electrode potential in the vicinity of the equivalence point during a redox titration. रेडॉक्स इंडिकेटर का काम क्या है, तो वो सडन चेंज लाना चाहिए जब रेडॉक्स टाइट्रेशन चल रहा है और रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है ड्यूरिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट. दिस इज पॉसिबल व्हेन द इंडिकेटर इटसेल्फ इज अ रेडॉक्स एक्टिव. मतलब क्या, इंडिकेटर अगर खुद ही रेडॉक्स एक्टिव होगा, मतलब वो खुद डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो वो हेल्प करेगा हमें एंड पॉइंट डिटेक्शन में. दैट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस विच इज अ रिवर्सिबल वन. मतलब वो खुद इंडिकेटर भी अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंडर, मतलब उस प्रोसेस के अंडर को जा रहा है, देन इट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट. द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर शुड हैव अ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस इन द कलर. मतलब क्या कि अगर हमने इंडिकेटर डाला है और वो रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो पहले हमने उसको रिड्यूस फॉर्म में डाला है, तो रिड्यूस फॉर्म में उसका ब्लू कलर होगा, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो रेड कलर होगा. इससे हमें पता चलेगा कि ये एंड पॉइंट भी हो गया उसके कलर चेंज से. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इंडिकेटर ऑक्सीडाइज्ड प्लस हमने उसमें कुछ किया, रिएक्शन हो गया, तो इंडिकेटर इज रिड्यूस, RED. ओके, OXD is for oxidize and RED is for reduce. So after the completion of the reaction, oxidized indicator gets changed to reduced indicator, and this will also accompany a color change, and that will help us to find the end point. So redox indicator में क्या है कि वो इंडिकेटर खुद भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंडर को जाएगा, तो इट विल हेल्प अस टू फाइंड द इक्विवेलेंस पॉइंट और द एंड पॉइंट. ओके, so this is the ideal characteristic of a redox indicator. अब यहाँ पे it is discussed a reaction Nernst equation in case of redox reaction. ठीक है, at potential E the ratio of concentration of two forms is given by the Nernst equation. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, तब ये नर्स्ट इक्वेशन एप्लीकेबल होती है. तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, किधर से आई, क्या हुआ, बट इतना ध्यान में रखिए कि हर एक जो ये इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है उसका मीनिंग क्या है, वो सिर्फ ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभार ना पूछा जाता है, एक दो बार आया है जीपैड में क्वेश्चन. ई रेड मतलब क्या, देखो, इट इज द हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल at the temperature of interest. Half cell reduction potential at the temperature of interest is E rad. E0 rad is the standard half cell reduction potential. R is the universal gas constant. Okay, उसका वैल्यू है यहाँ पे दिया. T is the absolute temperature. A is the chemical activity for the relevant species. F is the Faraday constant. उसका भी वैल्यू दिया गया है. And Z is the number of moles of electrons transferred in a cell reaction or half reaction. तो ये नर्स्ट इक्वेशन के एलिमेंट्स का मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है. ओके, जीपैड में जब आपको एक आधा कोई फॉर्मूला आता है, उसमें पूछा जाता है कि R स्टैंड्स फॉर, F स्टैंड्स फॉर, F इज अ फैराडे कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट, Z मतलब क्या. ठीक है, तो इसलिए हम डिटेल नहीं जाएंगे रिएक्शन में, बट इतना समझ लो, इसलिए मैंने ये सिर्फ मेंशन किया है. Next is types of indicator involved in this redox reaction. First is self indicator and next is external indicator. Okay, so first self indicator is potassium permanganate is a good example of this category. Potassium permanganate is a self indicator used in redox titration. Many a times the titrant itself may be so strongly colored that after the equivalence point a single drop of the titrant will impact a definite pink color at the end point of the titration. मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट इस कैटेगरी का बेस्ट है. सेल्फ इंडिकेटर में क्या होता है ना कि कभी कभी वो खुद ही इतना कलर्ड होता है कि हमें डेफिनाइट कलर एंड पॉइंट में डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सेरिक सल्फेट पेल येलो एंड आयोडीन ब्राउन आर अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी. द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ इंडिकेटर इज दैट स्लाइट ओवर टाइट्रेशन ऑलवेज ऑकर्स. इसमें क्या है ना, ओवर टाइट्रेशन होने के चांसेस होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या जब हम सेरिक सल्फेट या आयोडीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर. These are based on some visible reaction of the titrate substances with a suitable reagent so that the endpoint is marked by failure to elicit the reaction.
मतलब क्या, ये एक्सटर्नली वर्क करते हैं, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करते, बट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नली। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, द टाइट्रेशन ऑफ फेरस आयंस बाय K2Cr2O7, drops of solution removed to a spotting tile should during titration will give a deep Persian blue color with potassium ferricyanide because ferrous ions are still present. तो potassium ferricyanide ये इसे इंडिकेशन दिखाता है इस मैकेनिज्म से. At the end point ferric ions are present and this does not give a color with potassium ferricyanide. तो फेरिक आयंस जब हम बच जाते हैं फेरस आयंस के, तो फिर वो कलर नहीं देते चेंज. तो दिस इज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर. इतना ध्यान में रखिए, एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या करता है, एक्सटर्नली इट टेक्स पार्ट एंड डज नॉट इम्पार्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर एज इन टू अ सेल्फ इंडिकेटर. इंटरनल और रेडॉक्स इंडिकेटर यहाँ पे है. रेडॉक्स इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट कलर्स इन देयर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म. जैसे हमने बोला कि ऑक्सीडेशन मतलब जैसे हम रिएक्शन में डालेंगे उस इंडिकेटर को, उसका कुछ अलग कलर होगा, उसके बाद अगर उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो उसका कलर चेंज होगा. द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. मोस्ट ऑफ द रेडॉक्स इंडिकेटर्स आर डाइज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ विच आर कलरलेस. मतलब पहले वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, और फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने के बाद वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उनका कलर चेंज होता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डायफिनिलमाइन. ये रिड्यूस फॉर्म में कलरलेस होता है, फिर ब्लू कलर में हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद. नेक्स्ट इज डायफिनिलिन फिनिलमाइन सल्फोनेट, कलरलेस टू ब्लू. नेक्स्ट इज डायफिनिल बेंजीडीन, कलरलेस टू रेडिश वायलेट. मिथिलिन ब्लू, कलरलेस टू ब्लू, एंड स्टार्च कलरलेस टू ब्लू. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लू कलर देख सकते हो आप, कलरलेस टू ब्लू ये चेंज होता है. पोटेंशियोमेट्रिक मेथड. नाउ पोटेंशियोमेट्रिक मेथड फॉर मतलब एज अ इंडिकेटर हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं. दिस इज अ फिजिको-केमिकल मेथड which may be applied not only to those cases where suitable indicators are not available but also to those cases in which the visual indicator method fails or has a limited accuracy. पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है उस रेडॉक्स टाइट्रेशन का, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है. तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ कलरिंग एजेंट या कुछ नहीं इन्वॉल्व होता. और ये कब यूज करते हैं, जब विजुअल इंडिकेटर फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, या उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, तब हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन. एग्जांपल फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस वी कैन यूज पोटेंशियोमेट्रिक मेथड टू एंड पॉइंट डिटेक्शन इन रेडॉक्स टाइट्रेशंस. सम कॉमन ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स, उनका नाम दिए गए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, वो आप देख लेना. नेक्स्ट इज आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री. आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री क्या है वो हम देखेंगे. सो आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. पहले तो वो देख लीजिए, आयोडी एंड आयोडो. ओके, iodine can be a very conventionally and accurately titrated with standard thiosulfate solution. Okay, this is the basic principle involved in iodo or iodimetry. Two types of iodine titrations are possible: iodimetry, where standard iodine solution is used, and iodimetry, the liberated iodine during chemical reaction is titrated. आयोडीमेट्री में स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है, और आयोडोमेट्री में लिबरेटेड आयोडीन, जो एक कोई रिएक्शन हो रही है उसमें से जो आयोडीन लिबरेट होगा वो एज वो टाइट्रेट किया जाएगा. तो ये फर्क है आयोडी और आयोडोमेट्री में. इतना ही आई नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि जीपैट के लिए इतना सफिशिएंट है आयोडो और आईटी क्या होता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोडो एंड आयोडीमेट्री. इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया, ये अपना हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन. अब आयोडो एंड आयोडीमेट्री. नेक्स्ट विल बी सीइंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ओके, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस व्हाट इज इन्वॉल्व, ये भी प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स ही होती हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, बट इसमें क्या होता है ना, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस प्रेसिपिटेट को वे किया जाता है. ओके, precipitation method is a process of weighing an element in the form of precipitate which is separated by filtration from solution. मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसको हम फिल्टर करेंगे, प्रेसिपिटेट सेपरेट करेंगे, उसको वे करेंगे, वो इन्वॉल्व होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन प्रेसिपिटेशन मेथड. तो प्रेसिपिटेशन must be free from soluble impurities.
precipitates must be insoluble in solution, precipitates must be readily separated from the solution by filtration, and precipitates must be convertible into a pure compound by ignition or by simple evaporation. मतलब क्या, precipitate जो हम निकालेंगे फिल्टर करके उसमें कोई सोल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए और वो पूरी तरह से इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट अच्छी तरीके से बना हुआ होना चाहिए जो हम वे करने वाले हैं। फिर वो इजीली फिल्ट्रेशन से सेपरेट होना चाहिए, उसको सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एंड दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अ प्योर कंपाउंड बाय इग्निशन और सिंपल इवापोरेशन मेथड। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ सल्फेट और हलाइड्स इज गिवन। ओके, तो वो रिएक्शन दी गई है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कुछ पार्ट होता है कोलाइडल स्टेट, जो आपने सुटिक्स में भी पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिक्स में। हम यहाँ पे थोड़ा ये कोलाइडल स्टेट पे थोड़ा देखेंगे एंड देन विल बी एंडिंग आवर सेशन। सो व्हाट इज द कोलाइडल स्टेट? कोलाइड्स आर मिक्सचर्स ऑफ सॉल्वेंट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। कोलाइड्स क्या है? तो मिक्सचर है सॉल्वेंट एंड सस्पेंडिंग पार्टिकल्स, एंड दिस पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी बट आर लार्जर देन मॉलिक्यूल। मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं पर हम देख नहीं सकते, उनको हम कोलाइड्स बोलते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे डू नॉट सेटल आउट ऑफ सॉल्यूशन। वो नीचे सेटल भी नहीं होते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। एरोजोल कोलाइड, गैस प्लस लिक्विड और सॉलिड, फॉग एंड स्मोक is the example. Next is foam, where liquid plus gas is involved. Whipped cream, example. Emulsion, liquid plus liquid. Milk, solution, liquid plus solid. Paint, solid foam, solid plus gas. Marshmallow, solid emulsion, solid plus liquid. Butter, and solid solution, solid plus solid. Example is the pearl. So these are the few examples of colloids. And why we are seeing this in gravimetry? Because gravimetry में ये होते हैं colloidal solutions, इसलिए. Next is the same I have mentioned into the tabular form. Okay, so this is all about the volumetric analysis and gravimetry.